Hello students, today I am going to start new chapter 7 in history, the national movement during the First World War. In this chapter we will study the Lucknow Pact 1916, factors behind this pact, main features of this pact, drawbacks and significance, that is importance. Then we learn Home Rule League, factors behind the formation of Home Rule League, aims and objectives of the Home Rule League, program and activities of the Home Rule League, government's reaction to this movement, significance of this movement. Next, August Declaration 1917, features of this declaration and reaction of the government to this declaration. Then we will study Montague-Chelmsford reforms 1919, main features of this reforms and criticism of this reform. First we will learn about the Lucknow Pact 1916. The First World War broke out in 1914. The Indian leaders extended their support in the war with men and money in the hope that British government would sympathetically consider their demands for self-government. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक हो चुका था इन 1914 और इंडियन लीडर्स सपोर्ट कर रहे थे, मनी भी दे रहे थे और लेबर पावर भी दे रहे थे एंड यही होप से कि गवर्नमेंट उनको उनकी डिमांड फुलफिल करेगी फॉर सेल्फ गवर्नमेंट. बट इन फैक्ट इंडिया बीइंग अ ब्रिटिश कॉलोनी एट दैट टाइम गॉट इन्वॉल्व इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ऑन द अदर हैंड एंट्री ऑफ टर्की अगेंस्ट ब्रिटेन इन द वॉर. तो टर्की वॉज अगेंस्ट ब्रिटेन इन द वॉर एंड ब्रिटेन कॉलोनी इंडिया मानी जाती थी. War aroused the anti-British feeling of the Muslims. Meanwhile, Tilak was released in 1914 after 6 years of jail in Mandalay. In May 1915, Ali brothers, namely Maulana Muhammad Ali and Maulana Shaukat Ali, ये अरेस्ट हो गए फॉर सपोर्टिंग द टर्किश रूलर, क्योंकि मुस्लिम्स ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गए और टर्की क्योंकि मुस्लिम कंट्री है तो टर्किश रूलर खलीफा को वो सपोर्ट कर रहे थे एंड दैट इज व्हाई मौलाना मोहम्मद अली एंड मौलाना शौकत अली वर अरेस्टेड. अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड द कांग्रेस एंड द लीग met at Lucknow in December 1916 and an alliance known as the Lucknow Pact was concluded between these two parties. तो कांग्रेस और लीग दोबारा यहाँ पे लखनऊ में मिलते हैं इन दिसंबर 1916 एंड दैट इज वाई उनके बीच में एक बॉन्डिंग होती है, उसको लखनऊ पैक्ट बोलते हैं दोनों पार्टियों के बीच में. दिस पीरियड ऑल्सो विटनेस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द होम रूल लीग और इसी पीरियड में होम रूल लीग और ऑगस्ट डिक्लेरेशन भी होता है. फैक्टर्स लीडिंग टू द लखनऊ पैक्ट. दीज आर द फॉलोइंग फैक्टर्स ब्रॉट द कांग्रेस एंड मुस्लिम टुगेदर. अगेन चेंजेस इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मुस्लिम लीग. मुस्लिम लीग का ऑब्जेक्टिव जो एम था वो चेंज हो गया. मुस्लिम लीग इन 1913 स्टार्टेड डिमांडिंग सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश रूल, बट नाउ दे वांट now their political goal of India is changed. Now they want unity and now they want what? They want Purna Swaraj. Okay, but now they agreed with the Congress to work together. International events. In the First World War, Turkey fought against Great Britain. Turkey ने Great Britain के खिलाफ लड़ाई करी थी, against थी. The ruler of Turkey, that is Caliph, which we call Khalifa, was the religious head of the Muslim. वो religious ruler है, religious head है मुस्लिम्स का. तो मुस्लिम्स उनको obviously support करेंगे जो टर्की का रूलर है. All the Muslims living in the world felt that they support and help the Khalifa. The Ali brothers started spreading anti-British feeling among the Indian Muslims. और तभी अली ब्रदर्स ने ब्रिटिश के खिलाफ स्टार्ट कर दिया, लोगों को एंटी ब्रिटिश करने का उनको मौका मिल गया और इंडियन मुस्लिम्स में वो टर्की को सपोर्ट करने के लिए बोल रहे थे. दिस चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द मुस्लिम टूवर्ड्स द ब्रिटिश पेव द वे फॉर अ जॉइंट मीटिंग. और तभी ये चेंज हुआ तो मुस्लिम लीग से मुस्लिम्स जो थे वो कांग्रेस की तरफ ज्वाइंट होने लगे एट लखनऊ. कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द टू फैक्शंस ऑफ द कांग्रेस. टू फैक्शंस ऑफ द कांग्रेस कौन थे? एक हम लोग असर्टिव नेशनलिस्ट पढ़े थे और एक हम लोग अर्ली नेशनलिस्ट पढ़े थे. तो एनी बेसेंट tried to unite these two wings of the Congress. These two coins of the Congress means the early nationalist and assertive nationalist
brought together by Annie Besant, Tilak again joined the Congress in 1916 and played an important role in settling the differences between the Congress and the League. Next, settlement between the Congress and the League. कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में सेटलमेंट हो गया. Some liberal leaders like Muhammad Ali Jinnah were eager to join hands with the Congress, and this brought the Congress and League nearer together to each other. In this way, leaders like Tilak, Jinnah, Dr. Ansari took the initiative to bring the Congress and League again together to reach an agreement on the scheme of political reforms of in India. मतलब कि तिलक हैं, जिन्ना हैं, डॉक्टर अंसानी हैं, इन लोगों ने इनिशिएटिव लिया कि कांग्रेस और लीग को दोबारा साथ में ले लिया जाए पॉलिटिकल चेंजेस के लिए जो इंडिया में होना है. नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ द 1916 लखनऊ सेशन. In December 1916, Congress and the League met at Lucknow where they held their annual session. A joint scheme of reforms, मतलब कुछ changes jointly बैठ के बनाए थे. कौन? लीग और कांग्रेस दोनों ने साथ में मिल के रिफॉर्म्स बनाए. जॉइंट स्कीम, जॉइंटली दे सिट टुगेदर एंड उन्होंने साथ में बनाया जिसको लखनऊ पैक्ट कहते हैं. दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लखनऊ पैक्ट क्योंकि यहाँ पे जॉइंट स्कीम जो वॉर के बाद उनको इंडिया में चाहिए, दोनों ने, कांग्रेस ने, लीग ने, दोनों ने डिस्कस करके 1916 में बनाया जो हम लोग जिसको लखनऊ पैक्ट कहते हैं. नाउ मेन फीचर्स ऑफ द लखनऊ पैक्ट. तो लखनऊ पैक्ट जॉइंट स्कीम ऑफ रिफॉर्म्स है. तो ये जो बनाया है, बोथ रिफॉर्म्स वाज पास्ड बाय द कांग्रेस एंड द लीग. तो क्या फीचर्स हैं लखनऊ पैक्ट के? फर्स्ट इज ऑटोनॉमी ऑफ द प्रोविंसेस. प्रोविंसेस शुड बी गिवन ऑटोनॉमी इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स. द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड नॉट अननेसेसरीली इंटरफियर इन प्रोविंशियल मैटर्स. सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूरत नहीं है कि वो अननेसेसरी इंटरफियर करे प्रोविंशियल मैटर्स में. Second, abolition of the India Council. India Council of the Secretary of State operating from England. This should be prohibited. This should be stopped. Provincial legislature. 4/5 of the members of the provincial legislature were to be elected and 1/5 nominated. The number of Muslim members was laid down province by province. Muslims were to be elected through separate electorates. Now Muslims are demanding here for the separate electorate. Imperial Legislative Council. The Imperial Legislative Council was to include 150 members. Out of these, 4/5 जो elect होंगे, 1/5 will be nominated. 1/3 of the elected members जो भी होंगे वो Muslims होने चाहिए. Next, pass of the Imperial Legislature. Matters like defense, foreign affairs, political relations of India were to be excluded from the control of Imperial Legislature. ये जो मैटर्स हैं, डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, पॉलिटिकल रिलेशंस हैं जो इंडिया बाकी कंट्रीज के साथ रखती हैं, ये इंपीरियल लेजिस्लेचर के कंट्रोल से हटा दिया जाए. नेक्स्ट पॉइंट, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. यस, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स शुड नॉट बी इंट्रस्टेड विद जुडिशियल पावर्स. मींस एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जुडिशियल पावर्स नहीं रूल कर सकते. जुडिशरी शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. Viceroy's Executive Council. Half of the members of the Viceroy's Executive Council should be Indians. Safeguarding the religious interest. No bill could be introduced in the Legislative Council if it affected the interest of any community and such a bill could not be passed. इस तरीके के बिल को पास नहीं करना चाहिए if it was opposed by 3/4 of that community. मतलब कि अगर वो कम्युनिटी जिस कम्युनिटी के रिगार्डिंग जो कोई भी बिल बन रहा है और अगर वो ऑपोज कर रही है, 3/4 मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी आर ऑपोजिंग, तो वो बिल पास नहीं होना चाहिए. नाउ दीज आर द रिफॉर्म्स, दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ द लखनऊ पैक्ट विच वॉज passed by the Congress and the League. They want these changes, they want these reforms from British government. Now next topic is drawbacks of the Lucknow Pact. The Congress agreed to the scheme of communal electorates for the Muslim and thus it lost its secular character. Congress agreed हो जाते हैं मुस्लिम सेपरेट इलेक्ट्रेट्स जो मुस्लिम्स डिमांड कर रहे थे और इस तरीके से सेक्युलरिज्म खत्म हो जाती है. Second, the pact provided for Muslim representation in the council far in excess of their proportion in the total population. Third, in case of a deadlock between the executive and the legislature, it could not be removed
because the executive branch of the government was responsible to the Secretary of State for India, which was operating from England. अगर कोई डेडलॉक होता भी है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर में तो हम रिमूव तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ब्रांच है जो गवर्नमेंट की, जो इंडिया में है, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया की से रिस्पॉन्सिबल है ना. तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज रिस्पॉन्सिबल बाय द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट जो ऑपरेट हो रही है इंग्लैंड से. द पैक्ट इंट्रोड्यूस्ड communal veto in legislation as no legislature could proceed with any bill if 3/4 of the members opposed it. तो यहाँ पे communal veto इंट्रोड्यूस हो गया है कि अगर कोई 3/4 of the members of that particular community oppose कर रही है against any bill तो वो बिल पास नहीं होगा. These were the drawbacks of the Lucknow Pact. मतलब ये सब ड्रॉबैक्स मतलब डीमेरिट्स, कमियां हैं ये सब लखनऊ पैक्ट की. All these decisions were taken at the top level of leadership and the mass was not involved in this pact. लखनऊ पैक्ट में मास इन्वॉल्वमेंट नहीं था. ये सारे डिसीजंस जो टॉप लेवल ऑफ लीडरशिप है, जो टॉप लीडर्स है कांग्रेस और लीग के, उन्होंने ही आपस में डिसाइड कर लिया है. इसमें मास पीपल इन्वॉल्वमेंट नहीं था इस पैक्ट में. सिग्निफिकेंस ऑफ द पैक्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ द पैक्ट यही है कि हिंदू मुस्लिम्स यहाँ पे साथ में हो जाते हैं, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग दोनों साथ में हो जाते हैं, अर्ली नेशनलिस्ट एजर्टिव नेशनलिस्ट की भी यूनिटी हो जाती है. द यूनिटी बिटवीन द कांग्रेस एंड द लीग, बिटवीन द अर्ली नेशनलिस्ट एजर्टिव नेशनलिस्ट, दिस शोन एट द लखनऊ सेशन ऑफ द कांग्रेस. लखनऊ सेशन ऑफ द कांग्रेस में जो होता है, जो यूनिटी दिखती है कांग्रेस और लीग के बीच में, अर्ली नेशनलिस्ट एजर्टिव नेशनलिस्ट, दे ऑल वर सिटिंग टुगेदर. तो इससे ये प्रूव होता है कि गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट अब नेशनलिस्ट मूवमेंट को रोक नहीं सकती है. The British government felt it necessary to pacify the Indians by declaration of a policy of gradual development of self-governing institutions in India. और अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब ये जरूरत लगती है कि इंडियंस को पुचकारने के लिए, इंडियंस को खुश करने के लिए उनको एक ऐसी डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी जिसमें उनको सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस मतलब सेल्फ गवर्निंग पॉलिसीज कुछ लाना पड़ेगा. नेक्स्ट टॉपिक इज द होम रूल लीग. Home Rule League founded by Lokmanya Tilak and another by Annie Besant. Annie Besant ने आयरिश फिलॉसफी से आयरलैंड में उन्होंने देखा था होम रूल लीग हुआ था और उसी से वो इंस्पिरेशन लेके इंडिया में भी होम रूल लीग स्टार्ट करती हैं एट पूना. तिलक स्टार्टेड होम रूल लीग एट पूना. In September 1916, Mrs. Annie Besant established the Home Rule League at Madras in Chennai on the model of the Irish Home Rule League. You all can see this is Annie Besant, and the second picture shows Lokmanya Tilak. These are the two founders of the Home Rule League, that is Annie Besant and Lokmanya Tilak. Now factors leading to the formation of the Home Rule League. ऐसा क्या हुआ जो होम रूल लीग फॉर्म करना पड़ा? फर्स्ट factor is the First World War. First World War broke out in June 1914 and the British American statesmen said that war was being fought to make the world safe for democracy. However, Indian leaders felt that British had no moral right to deny the people of India the freedom, the rights for which she had fighting in Europe. Initially, the Indian leaders decided to cooperate with the British in their war efforts. इंडियन लीडर्स ने डिसाइड कर लिया था कि वो ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट करेंगे वॉर में, बट एज द वॉर कंटिन्यूड दे रियलाइज कि ब्रिटिश वुड नॉट रेसिप्रोकेट देयर लॉयल्टी. मतलब कि वो तो एफर्ट करेंगे, वो तो कोऑपरेट करेंगे ब्रिटिश के साथ, लेकिन उसके बदले ब्रिटिश उनके साथ रिकोऑपरेट नहीं करेगी. एंड दे बिगैन टू डिफाई द अथॉरिटी एंड दैट इज व्हाई इंडियन लीडर्स वर अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. सेकेंड रीजन, तिलक रिलीज फ्रॉम प्रिजन. तिलक प्रिजन से रिलीज हो गए थे आफ्टर 6 months ड्यू टू द अनटायरिंग एफर्ट ऑफ मिसेस एनी बेसेंट. तिलक ने और अदर एजर्टिव लीडर्स ने भी लखनऊ सेशन ऑफ द कांग्रेस को ज्वाइन किया, होम रूल लीग को आगे बढ़ाया पूना में. होम रूल लीग, इन दिस लीग रोल प्लेड बाय मिसेस बेसेंट. मिसेस एनी बेसेंट थ्रू आयरिश बाय बर्थ, आयरलैंड में पैदा हुई हैं, हैड ग्रेट रिगार्ड फॉर इंडियन फिलोसफी एंड कल्चर.
She felt that the root cause of the misery of the Indian people was their subjugation to the British rule. During 1908 to 1913, she visited England and was impressed by Redmond's Home Rule movement in Ireland. वो बहुत impressed हो गई आयरलैंड में Home Rule League जो चल रहा था. She thought to start a similar movement in India as well. After joining the Congress in 1914, she expressed her views through her writings in the English weekly journal जो Commonweal के नाम से and English daily newspaper that is New India. इन्होंने अपनी राइटिंग्स के थ्रू अपनी व्यूज को एक्सप्रेस किया in 1914. Next, no concrete assurance from the government. गवर्नमेंट से कोई एश्योरेंस नहीं मिल रहा था. The president of Mumbai session of the Congress 1915 put stress on autonomy within the empire. This was the objective of the Congress. However, the government did not giving any assurance regarding this matter. Government कुछ भी इस मैटर में नहीं बोल रही थी. जो सेल्फ ऑटोनॉमी विद इन द एम्पायर की बात हुई थी कि एम्पायर के तहत ही कुछ ऑटोनॉमी दे, कुछ सेल्फ गवर्नमेंट की पास दें. But the government was not giving any response regarding this matter. The political leaders therefore became agitated. Next topic is aims and objectives of the Home Rule League. Home Rule League का क्या aim था? They want self government. They want स्वराज. यहां तक कि तिलक ने तो ये भी कह दिया कि स्वराज इज द बर्थ राइट ऑफ इंडियंस. इंडियंस का जन्म हक स्वराज है. दैट इज फ्रीडम. Unless and until India would attain Swaraj, her wealth would not be utilized for her greatest need. जब तक इंडिया को स्वराज नहीं मिलेगा तब तक जो इंडिया की वेल्थ है वो उनकी जरूरत के लिए यूटिलाइज नहीं हो पाएगी. होम रूल मूवमेंट मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट, मीन्स अपनी जन्मभूमि को खुद से गवर्न करना. होम रूल मूवमेंट, अपने होम को रूल करना, दैट इज उनका एम था स्वराज, बिकॉज स्वराज इज द बर्थ राइट ऑफ द इंडियंस. प्रोग्राम एंड एक्टिविटी ऑफ द होम रूल मूवमेंट. होम रूल लीग कर क्या रहा था? बोथ द लीडर्स यूज कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स टू अटेन देयर ऑब्जेक्टिव्स. बोथ द लीडर्स, यहाँ पे मतलब दो लीडर्स हैं, एनी बेसेंट एंड तिलक. लीडर्स ऑफ द मूवमेंट ट्रैवल फार एंड वाइड. बहुत दूर दूर जा जाके वो अवेयरनेस लोगों को अमंग द पीपल कर रहे थे, अवेयर कर रहे थे. They criticized the government for neglecting industries and education in India. गवर्नमेंट को भी वो क्रिटिसाइज कर रहे थे कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम कैसा है, इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो रही है. They criticized the land revenue policy and foreign policy of the government as well. They distributed pamphlets and leaflets among the people to aware them. स्वदेशी को भी पॉपुलराइज किया गया कि हमें बॉयकॉट करना चाहिए फॉरेन गुड्स और स्वदेशी अपनाना चाहिए. Now what was the government's reaction to this movement? The government tried to suppress. Suppress means stop. Government ने बहुत कोशिश करी इस मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए. Tilak's entry into the Punjab was prohibited on the ground that the home rule propaganda was a threat to public peace. पब्लिक की शांति को, पब्लिक के पीस को वो होम रूल मूवमेंट थ्रेट कर रहा है, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है. और तिलक की एंट्री जो पंजाब में होनी थी वो प्रोहिबिट करा दी गई, स्टॉप करा दी गई. On June 15, 1917, Madras governor issued orders to arrest Mrs. Besan and her two associates, namely B.P. Wadia and G.S. Arundale. 15 जून को मद्रास गवर्नर ने ऑर्डर पास कर दिया कि मिसेस एनी बेसन को और B.P. वाडिया को और G.S. अरुंदले को अरेस्ट कर दिया जाए. मैं एक चीज बता देती हूँ, कोई भी मूवमेंट होता है तो गवर्नमेंट का रिएक्शन ऐसा ही रहता है. ठीक है, अरेस्ट करना, लाठीचार्ज करवाना, मार खिलवाना, ये सब होता है. ड्यू टू पॉपुलर प्रेशर शी वॉज रिलीज. लेकिन लोगों का इतना ज्यादा सपोर्ट था मिसेज एनी बेसन को तो उनको रिलीज करना पड़ा इन सितंबर 1917, सेम ईयर. सिग्निफिकेंस ऑफ द मूवमेंट. सिग्निफिकेंस ऑफ द मूवमेंट. द होम रूल मूवमेंट इन्फ्यूज्ड अ न्यू स्पिरिट एंड लाइफ इन द नेशनल मूवमेंट. नेशनल मूवमेंट जहां शांत हो गया था, अब होम रूल मूवमेंट ने एक नई स्पिरिट, एक नया लाइट, एक नया जोश जज्बा नेशनल मूवमेंट में लाया जब कांग्रेस इनएक्टिव हो गया था. पहले मूवमेंट में दोनों का पार्टिसिपेशन था, विमेन का भी था. स्वदेशी स्पिरिट बहुत ज्यादा निकल के आ रही थी. मूवमेंट स्प्रेड फार बियॉन्ड द बाउंड्रीज. इंडिया से दूर दूर, इंडिया के बाहर भी इस मूवमेंट की चर्चा होने लगी. ब्रिटिश लेबर पार्टी एंड इट्स नॉथिंगम कॉन्फ्रेंस पास्ड अ रेजोल्यूशन टू सपोर्ट होम रूल इन इंडिया. तो इंडिया के बाहर से भी लोग होम रूल मूवमेंट को सपोर्ट करने लगे. दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मूवमेंट.
On 20th August 1917, the Secretary of State, Mr. Montague, announced that the policy of Her Majesty's government was the gradual development of self-governing institutions in India. Mr. Montague ने अनाउंस किया कि वो कुछ पॉलिसीज बनाएंगे जिसमें सेल्फ गवर्निंग होगा. The Government of India Act 1919, which we call Montague-Chelmsford Reforms. Montague-Chelmsford Reform, you can say, or Government of India Act 1919 provide for the distribution of powers. तो ये एक्ट बनेगा जिसमें सेंट्रल और प्रोविंसेस की पावर्स बताई जाएगी इस गवर्नमेंट ऑफ एक्ट के थ्रू. In the next video, I'll discuss August Declaration 1917 and the Government of India Act 1919. Thank you.